everybody, welcome to the YouTube channel of Delhi Institute for Civil Services. I'm Anchal Jain and I'm yet again with another topic from international relations. Today the topic that we're going to discuss is India-Nepal relations. So as you know, a case of unrealized potential wherein history, geography and culture indicate the possibility of a relationship based on mutual benefit. This is Nepal, a case of unrealized potential. However, if you talk about the relationship in detail, you would realize that multiple internal and external factors have yet time and again created some friction in our relations. That is what we are going to talk about. Also, the major highlight of this lecture or this video is going to be the recent visit by Nepal's Prime Minister, Mr. Prachanda, and the MOUs that we have signed with Nepal during his 4-day visit in June 2023, that is last week. Now when we talk about Nepal in a little bit of detail, so before I go to what happened in the 4 days of his official visit, let's just delve a little deep into the basics of India-Nepal relations. So as you know, Nepal is a Himalayan country. It is a landlocked country between India and China. Also that in sequence, if you remember the neighboring states of Nepal when it comes to Indian states, they are Uttarakhand and then you have UP, Bihar, West Bengal and Sikkim, right? It is a landlocked Himalayan country. Also there are some facts about Nepal that you must remember. One, that it was never ruled by British, it was always kept as a buffer by the British. So Nepal was a buffer state and it was never ruled by British, it was independent, right? That's one. Number two, more than 32,000 Gorkha soldiers have served or are serving in the Indian Army. If you talk about the colonial past, even in the British times, Gorkha regiment, so you must have heard about the Gorkha regiment. So Gorkhas used to work in the British Indian Army even then, and they still work in the Indian Army right now, right? Apart from that, it opens in the Indo-Gangetic plain. So if you know this, these are the Indo-Gangetic plain. It opens up in the Indo-Gangetic plain, which is why the opportunity is very lucrative when it comes to opportunity when it comes to India and the transit agreements that we want to make. Apart from that, if you realize, Nepali citizens are also eligible to appear for the UPSC CSC exam, and apart from the All India services, they are eligible for all other services, right? उसके अलावा हमारी जो बॉर्डर है वो सशस्त्र सीमा बल SSB guard करती है, right? So our border with Nepal is guarded by SSB. Now when you talk about our border, so now we have a border agreement or we have a border dispute with each other, okay? So British and Nepal, they had done a border agreement, so it was the Treaty of Sugauli. Now what about Treaty of Sugauli? Let us come to that in a bit. But you must precisely know that India and Nepal relations are also termed as have roti beti ka rishta. So with Nepal we have roti beti ka rishta. That means that our livelihood, so we offer them livelihood opportunities. They come here for work. We have over 6 million Nepalis working in India. That is one thing. And another one is the marital alliances or matrimonial alliances that we have between both the countries. So if you talk about Bihar specifically, so Madhesis in Nepal, so now they are said to have very similar ethnicity as UP and Bihar. So UP Bihar से लोगों का नेपाल में आना जाना रहता है. Matrimonial alliances between Nepal and UP Bihar happens, very common, right? So Mr. Rajnath Singh had called or termed our relations as roti beti ka rishta, right? If you talk about the Treaty of Sugauli that I just spoke about, so 1816, British signed a treaty of Sugauli with Nepal where the border was delineated. So there was a border contention, right? तो नेपाल के साथ हमारी border क्या होगी या British की border क्या होगी during 1816 और in the 19th century. तो उसके लिए agreement हुई थी, जहाँ पे इस agreement में ये कहा गया था कि जो ईस्टर्न border होगी नेपाल और इंडिया की, जो ईस्टर्न बॉर्डर होगी वो होगी रिवर मेची, राइट? महाभारत लेक भी इसे कहा जाता है. तो रिवर मेची होगी आपकी
ईस्टर्न बॉर्डर, रिवर काली या महाकाली, ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, राइट. एंड देन यू हैव गंडक. नाउ गंडक इन सुस्ता, सुस्ता इज इन बिहार, राइट. आई विल शो यू वेयर सुस्ता इज. ये यहाँ है सुस्ता, ठीक है. तो गंडक will be the international boundary in बिहार, right. Now what is the issue? border contention हमारा नेपाल के साथ क्या है? ये है कि जो काली है, रिवर काली, now काली originates in Kalapani. That's what we say, that Kali river originates in Kalapani. On the other hand, Nepal says that Limpiadhura is where it originates. तो हमारा issue ये है कि origin of काली रिवर कहाँ है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ओरिजिन. सो केपी ओली की जब सरकार थी नेपाल में, तो उन्होंने एक मैप शेयर किया था जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया नेपाल का है. दिस वॉज डन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, एब्सोल्युटली. केपी ओली वॉज ऑल्सो नोन टू बी क्लोजर टू चाइना दैन टू इंडिया. ही वॉज अ लिटिल अवर्सिव ऑफ इंडिया, विच इज़ वाई अ मैप लाइक दिस नेपाल केम आउट विथ, राइट. तो ये अबाउट द ओरिजिन ऑफ काली रिवर ये डिस्प्यूट है. और दूसरा गंडक. सो नाउ गंडक का इशू क्या है कि गंडक इज द इंटरनेशनल बॉर्डर. गंडक फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, बिहार में, तो बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. सो नाउ द इशू विद गंडक इज दैट इट चेंजेस इट्स कोर्स. तो आप ये समझिए कि अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर का अगर कोर्स बदलता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री इज ऑल्सो मूविंग, राइट. तो वो एक इशू हमने यहाँ पे देखा है कि because of the Treaty of Sugauli and because of these three rivers being the international borders on the eastern, western and the central बिहार वाले साइड पे, तो ये rivers को इंटरनेशनल बॉर्डर रखने का एक इशू ही ये है कि या तो उसका कोर्स चेंज होता रहता है या उसके ओरिजिन पे आपको सवाल होते हैं या डिस्प्यूट होते हैं, राइट. सो दैट इज एसेंशियली द डिस्प्यूट वी हैव विद नेपाल. गंडक आपने देखा अगर हो तो गंडक है यहाँ पे, राइट. Madhesis, as I talked about, so Madhesi issue is also a very very upcoming or outgoing issue with respect to Nepal. So Madhesis are the ones who have very similar cultural ethnicity as UP and Bihar, ठीक है. तो वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ लोगों को, Madhesis को a little discriminate, so they are a discriminated community there, ठीक है. तो ये हमारे लिए एक इशू था कि भाई क्योंकि हमारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं तो आप मधेसीज के साथ ये ना करें, ठीक है. सो नाउ इफ वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेजर इश्यूज, लेट्स टॉक अबाउट some key features of our relationship, and if you would like to make a note of it, you may want to do that as well. Let's discuss the issues in a little detail. So first let's talk about security. So if you talk about security issues, there are a couple of things to consider. One, that SSB or Sashastra Seema Bal is the border guarding force that guards our border. Number two, we have a military exercise with Nepal which is called Surya Kiran. Then if you talk about more factors, I told you over 32,000 Gorkhas serve in Indian Army. तो आप देख सकते हैं over 32,000 soldiers or Gorkhas are recruited in the Indian Army, right? Apart from that, we must also know that we have an open border with Nepal. So we have an open border with Nepal where visa free travel आप नेपाल में कर सकते हैं. बहुत easy travel वहाँ से यहाँ लोगों को और यहाँ से वहाँ लोगों को मिल जाता है. तो ये open border है. So now this open border also, please keep one more thing in mind कि ये जो open border है, हाँ, open border is not with respect to
सम ट्रीटी, तो किसी ट्रीटी का पार्ट नहीं है ओपन बॉर्डर, इट इज़ ओनली आउट ऑफ अ कन्वेंशन, या क्योंकि चला आ रहा है तो कस्टम्स एंड यूसेज की वजह से. सो ओपन बॉर्डर इज बिकॉज ऑफ कस्टम्स एंड यूसेज. ठीक है, वैसे इट्स नॉट अंडर एनी ट्रीटी. नेपाल के साथ वैसे हमने, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नेपाल के साथ हमने 1950 में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी थी. ठीक है, पर ये इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है कि हमारी उनके साथ एक ओपन बॉर्डर है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी इन इश्यूज के अलावा ना ओपन बॉर्डर के साथ कुछ इश्यूज इनहेरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, जैसे कि there have been cases और there have been allegations या apprehensions that ISI से भी कुछ लोग यहाँ नेपाल की बॉर्डर से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं. तो टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन बोलो जो ओपन बॉर्डर से बहुत इजीली हो सकता है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलो, आप ड्रग ट्रैफिकिंग बोलो, आप काउंटरफीट करेंसी का एंट्री बोलो इंडिया में या नेपाल में, ये सब बहुत ही ज़्यादा ईजिली पॉसिबल हो जाता है अगर आपके किसी कंट्री के साथ ओपन बॉर्डर है. तो नेपाल को एक ट्रांजिट पॉइंट बना के Pakistan probably or China probably can use it to infiltrate India. Now this is one issue that we have with the open border thing. ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं एक बात आपको ये बताऊं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि फॉर सॉल्विंग दिस इशू यू हैड फॉर्म्ड एन एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप, बोलते हैं इसको EPG, एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप. इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो 2018 में दी थी विद रिस्पेक्ट टू बायलैटरल एग्रीमेंट्स. तो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ने क्या बोला कि आप, एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप को हमने क्यों बिठाया था, इनको इसलिए बिठाया गया था कि भाई आप जो बायलैटरल अपने अग्रीमेंट हैं या जो बायलैटरल कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स हैं, आप इन पे एनालिसिस करके एक आप रिकमेंडेशंस दीजिए कि हमको बेटर रिलेशंस या बेटर कोऑपरेशन के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एमिनेंट पर्सन ग्रुप में इनकी रिकमेंडेशंस आई 2008 में 18 में, और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि एक स्ट्रिक्ट चेक ऑफ ID कार्ड्स एट द बॉर्डर शुड हैपन. ठीक है, अब स्ट्रिक्ट चेक रखिए अपने बॉर्डर पे ID कार्ड्स का. दूसरा, इन्होंने दूसरी चीज़ ये बोली कि आप 1950 ट्रीटी को रिप्लेस कर दीजिए और उसकी जगह पे एक नई ट्रीटी ले आइए. ठीक है, ये बोला. और दूसरा ये बोला कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को थोड़ा और भी तगड़ा कर सकते हैं. ठीक है, ये इस EPG की रिकमेंडेशंस थी. तो नाउ दिस वाज अबाउट द सिक्योरिटी. इसमें आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हम उनके मिलिट्री पर्सोनल भी ट्रेन करते हैं, राइट. सो वी ऑल्सो ट्रेन देयर military personnel. Apart from that, if you consider another issue, if you talk about waters, you have more than 250 rivers. ढाई सौ से भी ज़्यादा नदियाँ अपने बीच में हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ हिमालयन कंट्री, एंड हिमालयन कंट्री में क्या होगा कि हिमालयन कंट्रीज में ऑब्वियसली यू हैव मोर रिवर्स, राइट. सो हिमालय से फ्लो होती हुई ये कुछ नदियाँ, तो अराउंड 250 छोटी मोटी कुछ बड़ी नदियाँ हैं, कोसी है, गंडक है ना, महाकाली है. तो ऐसी बहुत सारी आपके पास नदियाँ हैं जो अपने बीच में फ्लो होती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग. नंबर 2, हमने कोसी, गंडक, महाकाली, है ना, कोसी, गंडक, महाकाली, ऐसी हमने नदियों पे बड़े प्रोजेक्ट्स, या फॉर हैविंग लार्ज प्रोजेक्ट्स वी हैव मेड दिस प्रपोजल दैट वी शुड हैव लार्ज प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर्स. पर एज सच कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. अनदर थिंग इज, एक दूसरा प्रोजेक्ट है पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट. This is another project, Pancheshwar Dam project.
पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट पिछले 30 सालों से, more than 3 decades, it is still in the talks or it is still being negotiated. अभी तक इस पे कोई भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है. नेपाल इज अगेंस्ट द प्रोजेक्ट. ठीक है, ये प्रोजेक्ट किस पे है? दिस प्रोजेक्ट इज ऑन महाकाली पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट, राइट. इसके अलावा वी आर ऑल्सो डूइंग अनदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज अरुण 3, अरुण 4. तो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर डूइंग टुगेदर. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू say that electricity or energy, if you talk about, है ना, energy is another source of cooperation between us. Number 3, energy. So when you talk about energy, we have taken Nepal from being net importer of power to now being an exporter of power. हमने, despite its own potential, Nepal was not able to exploit its own potential. It was not able to generate power as it should have, because anyway it has potential, right? What India did was empowered Nepal and made it efficient enough to generate electricity, not just generate electricity, but to also export electricity. We will come to that point in a bit. So we also have 2 power trade agreements. Okay, so with respect to 2 power trade agreements that we made, one in 1971 and another one in 2014, और अभी एक recently हमने एक long term power trade agreement करा है, right? Apart from this, if you consider Nepal with its electricity potential, or Nepal with its need to export electricity, this was important. Why? Because you want to empower your neighbors. ठीक है. तो क्या हुआ है बेसिकली कि आपने नवंबर 2021 में एक अग्रीमेंट करी है. ठीक है. इस अग्रीमेंट के तहत आपने ये कहा है कि हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करेंगे, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, राइट. वी हेल्प नेपाल generate electricity and then we buy or import that electricity. See, mind you, please keep one thing in mind, that we are already electricity surplus or power surplus. Okay, we have helped Nepal become more power surplus or power surplus because we envision or we have a vision of creating one continent, one grid. So probably power surplus region से आप power deficient regions में electricity भेज सकते हैं या डिलीवर करवा सकते हैं. ठीक है. तो वी कैन एक्ट लाइक अ ट्रेडिंग लिंक. तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमने अभी अभी जो अग्रीमेंट्स करे हैं उसमें एक अग्रीमेंट ये भी है कि नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी हम इंपोर्ट करके वी कैन सेंड इट टू बांग्लादेश, राइट, बिकॉज बांग्लादेश इज इन नीड ऑफ पावर. वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट, राइट. इसके अलावा एक अपर, सो नेपाल बिकेम power surplus after the upper Tamakoshi हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो ये जो 456 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है, 456 मेगावाट्स का पावर प्रोजेक्ट है ये तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. तो तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे ही ऑपरेशनल हुआ तो नेपाल बिकेम पावर सरप्लस. देखो, अब इंपोर्ट करना, अभी आप ये सवाल पूछ सकते हो फॉर एग्जांपल कि मैम अगर इंडिया ऑलरेडी पावर सरप्लस है तो हमें और पावर इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है ना. तो उसमें आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक कि कोल का शॉर्टेज. So you would have heard about coal crisis or the coal shortage, and if you want to know about the coal shortage or the coal crisis that India saw, please feel free to mention in the comment section below. I will be glad to make a video on the coal crisis of India also that we recently saw, right? So we witnessed a coal crisis. So coal is any day or any way a lesser available reserve or resource, right? And plus India has also bid for being carbon neutral by 2070.
in that case you will have to decrease your dependence on coal generated power. You might want to shift to wind, you might want to shift to hydro, you might want to shift to say solar, right? So in that case importing hydroelectric power or hydro power will be a boon, right? इसके अलावा अगर आप दूसरी बात करो कि भाई हम नेपाल की प्रोस्पेरिटी को भी फोकस में रखना चाहते हैं, राइट? तो अगर आप किसी को फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हो तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, राइट? पर इसमें ना 2-3 इश्यूज़ हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट इश्यूज़ ना, तो इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं. उसमें एक इशू ये है कि नेपाल सेल्स अस इलेक्ट्रिसिटी एट अ चीपर रेट दैन इट डज इन द डोमेस्टिक मार्केट, राइट? नंबर 2, हम नेपाल से सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं जो हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स या हमारे फंड किए हुए प्रोजेक्ट्स से बनती है, राइट? एंड नंबर 3, इतना इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने के लिए अभी हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है. सो दैट दोज आर अ कपल ऑफ इश्यूज व्हेन इट कम्स टू पावर ट्रांसमिशन, राइट? अब अगर आप दूसरी एक बात करें विथ रिस्पेक्ट टू अनदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो 2 प्रोजेक्ट्स थे जो पहले चाइना के हाथ में थे और फिर चाइना को उसमें से ड्रॉप कर दिया गया. तो दोज 2 प्रोजेक्ट्स आर सेती रिवर एंड वेस्ट सेती रिवर. तो ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना ने अब विड्रॉ कर लिए हैं और अब इसको इंडिया डेवलप करना चाह रहा है, राइट? इसके अलावा देयर इज़ अनदर इशू ऑल्सो. अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2022 में अगर आप देखें तो अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2022 में इस प्रोजेक्ट को 8 साल हो गए, राइट? पर 8 साल से अभी तक, सो इट्स बीन मोर देन 8 years सिंस द प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड, बट अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया है. तो हमको एक सजेशन में ये बात भी लिखनी चाहिए कि थोड़ा एक्सपेडिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आप करिए, अदरवाइज कॉस्ट एस्केलेशन हो सकती है, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट in Nepal and India relations, which is your trade and transit. अगर हम ट्रेड और ट्रांजिट की बात करें तो सबसे पहला नेपाल का 2/3 ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड किसके साथ है? जी बिल्कुल, इंडिया के साथ. नेपाल का 2/3 ऑफ द मोर देन 2/3 ऑफ द ट्रेड इज विथ इंडिया, राइट? दूसरा, हम इन द टॉप 5 FDI इन्वेस्टर्स में भी एक हैं. सो फॉर एग्जांपल, तो पहले हम हुआ करते थे टॉप FDI इन्वेस्टर इन नेपाल, आजकल हम हो गए हैं सेकेंड. पहला कौन है? बिल्कुल चाइना, राइट? तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ये 1-2 चेंज होते रहता है, पर अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखो तो आप हमेशा आंसर में या मेंस के आंसर्स में आप ये लिख सकते हैं दैट वी आर वन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर्स इन नेपाल, राइट? तो वी आर द टॉप 5 FDI इन्वेस्टर्स इन नेपाल, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द नेपाल का मेजॉरिटी of the third party trade this also happens through India. क्यों? क्योंकि नेपाल लैंडलॉक्ड है, ठीक है? और नेपाल ऐसे लैंडलॉक्ड है कि नेपाल की दोनों साइड पे एक कंट्री. सो फॉर एग्जांपल, कैसे ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है. सो नाउ इन दैट केस लैंडलॉक्ड कंट्रीज के साथ ना एक इशू हो जाता है कि ये बहुत इजीली दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि एयर स्पेस वायलेशन हो जाता है. तो नेपाल वुड नीड द परमिशन ऑफ इंडिया अगर वो इंडिया से पास होना चाहते हैं, चाइना अगर वो चाइना से पास होना चाहते हैं, राइट? तो ये भी एक बात है कि उनका मेजॉरिटी जो थर्ड पार्टी ट्रेड होता है वो इंडिया के थ्रू होता है. इसके अलावा हम उनको फ्यूल और पेट्रोलियम, सो मेजॉरिटी ऑफ देयर फ्यूल एंड पेट्रोलियम नीड्स
fuel and petroleum needs are fulfilled by us. अगर आप देखें तो up till 4-5 साल पहले तक तो we used to be the sole suppliers of petroleum and fuel to नेपाल. आजकल चाइना के साथ भी जब केपी ओली की सरकार आई तो चाइना के साथ भी उन्होंने एक पेट्रोलियम और फ्यूल का अग्रीमेंट कर दिया कि भाई हम भी तुम्हें थोड़ा बहुत सप्लाई करना चाहते हैं. ठीक है. रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो हमने एक ये पेट्रोलियम एंड फ्यूल के ही अंदर आप लिख सकते हैं कि एक मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन, मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन. ये जो पाइपलाइन है मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन, दिस इज साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन. किसका प्रोजेक्ट है ये? इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, राइट. इसके अलावा अगर आप देखिए ट्रांजिट में तो हमारे कुछ आईसीपीज हैं. आईसीपीज का मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. ठीक है. तो अगर आप इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात करें तो यू हैव रक्सौल, बीरगंज. रक्सौल कहाँ है जी? बिल्कुल, रक्सौल इज इन बिहार. रक्सौल बीरगंज की बात करो या आप बात करिए जोगबनी की. करेक्ट. जोगबनी कहाँ है? नेपाल, राइट. अभी कुछ हैं जो इन लिस्ट में हैं या इन लाइन है. इन लाइन मतलब अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए हैं बट दे आर नेक्स्ट इन लाइन टू बी मेड ऑपरेशनल. इनमें कौन से हैं? तो भाई नेपालगंज पे अभी जब लास्ट वीक जब इनके नेपाल के जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो हमने नेपालगंज को भी इनॉग्रेट कर दिया है. तो दिस आई विल टेल यू अगेन. तो अब ये इन लाइन नहीं है, अभी आप यहाँ लिख सकते हैं नेपालगंज. ठीक है. नेपालगंज के अलावा यू हैव बाराबासा के अलावा यू हैव सोनौली. अब सोनौली पे भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी लास्ट वीक में हो चुकी है. इसके अलावा यू हैव पानी की टंकी नहीं है, ये पानी टंकी है. पानी टंकी इज अ प्लेस, राइट. सो यू हैव पानी टंकी. देन यू हैव बीठामोर. ठीक है. यू हैव बीठामोर. So these are some integrated check posts, right? Now when you talk about another issue between India and Nepal, you can also talk about the China factor. That Nepal often plays the China factor. उसका मतलब क्या है कि नेपाल to get a better bargain from India, it plays a China card. नेपाल को पता है कि इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़े, राइट. इन दिस केस नेपाल ऑफन, सो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर सरकार ऐसी है, पर जब कम्युनिस्ट सरकार आती है तो उनका थोड़ा टिल्ट चाइना की तरफ ज़्यादा रहता है. ठीक है. तो जब केपी ओली की सरकार थी तो आप देखोगे कि भाई 2015 में इन्होंने कुछ अग्रीमेंट साइन करे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू टू नेम अ फ्यू, इन 2015 नेपाल एंड चाइना, इन लोगों ने कुछ अग्रीमेंट्स किए. ठीक है. कैसे अग्रीमेंट्स किए इन लोगों ने? सबसे पहले तो इन्होंने बॉर्डर चेक पोस्ट पे अग्रीमेंट्स करे. ठीक है. बॉर्डर चेक पोस्ट से क्या होता है? थोड़ा इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल हो जाता है. ठीक है. देन दे मेड एन अग्रीमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम. और आपको पता है कि इसके पहले तक हम सोल सप्लायर्स हुआ करते थे. अभी भी अगर आप देखोगे कि ओवर 95-96% या अगर मैं सेफली बोलूँ तो 99% ऑयल अभी भी उनको हम ही सप्लाई कर रहे हैं. पर ठीक है, द वैल्यू विल चेंज, राइट. इसके अलावा अगर आप बात करें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की तो इन्होंने एक और अग्रीमेंट साइन किया था ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भी हम मोनोपोली रखते थे यहाँ पे. अप टिल 2017 तो हमारी मोनोपोली थी एंड देन चाइना ऑल्सो एंटर्ड. ठीक है. जब 2018-19 में अगर आप बात करें 2018-19 तो 18-19 में ना केपी ओली गए थे चाइना, तो वहाँ पे ये एक और अग्रीमेंट करके आए हैं रेल कनेक्टिविटी पे.
नेपाल और चाइना, जब केपी ओली चाइना गए थे तो 2018-19 में उन्होंने एक रेल कनेक्टिविटी का भी अग्रीमेंट साइन करा। तो आप देख रहे हो है ना कि केपी ओली के टाइम पे, कि उनकी सरकार के टाइम पे बहुत ही नेपाल और चाइना के नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। तो दे मेड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स, राइट। इसके अलावा 2019 में, सो इफ़ यू टॉक अबाउट 2019 ना, 2019 में क्या हुआ कि बिम्स्टेक की एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो इंडिया में होस्ट होने वाली थी। बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज वाज गोइंग टू बी होस्टेड इन इंडिया, इट वाज होस्टेड इन इंडिया। नेपाल चोज टू स्किप इट, नेपाल नहीं आया उस मिलिट्री एक्सरसाइज में, रादर नेपाल चोज टू गो टू सागरमाथा एक्सरसाइज जो उन्होंने चाइना के साथ बायलैटरल कंडक्ट करी। इट वाज अ 12-day लॉन्ग एक्सरसाइज, राइट। तो दैट हर्ट अस और इट पिंच्ड अस अ लिटिल कि भाई तुम यू मेड अ चॉइस, यू नो, एंड यू showed to the world that you have a greater tilt towards China and not, अब इंडिया छोड़िए, ये तो बिम्स्टेक की थी, मतलब सारे कंट्रीज एक तरफ और चाइना एक तरफ। तो ये केपी ओली की सरकार ने बहुत ही एविडेंटली ये बताया, या बहुत विविडली ये बताया दैट वी आर इन द फेवर ऑफ दिस कंट्री मोर देन इंडिया, ठीक है। बट देन 2022 वापस अगर आप देखें कि वहाँ सरकार बदल गई और पुष्प जी आ गए या प्रचंडा जी आ गए, तो 2022 में जो है एक डील इन्होंने जो करी थी, उन्होंने स्क्रैप करी। तो बूढ़ी गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो बूढ़ी गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में 2017 में केपी ओली की सरकार ने साइन करा था, ठीक है। 2022 के अप्रैल में, 2022 अप्रैल, दिस गवर्नमेंट, सो दुबा, शेर बहादुर दुबा एंड देन प्रचंडा, तो इन लोगों ने जो है ये अग्रीमेंट को स्क्रैप कर दिया और बोला कि भाई चाइना तुम रहने दो, हम ये प्रोजेक्ट खुद बना देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। इसके अलावा एक इशू हमें ये है कि नेपाल जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको ये सपोर्ट करते हैं, राइट। तो सपोर्टिव ऑफ चाइनाज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। कमिंग बैक टू दिस, तो नेपाल जो है वो चाइनीज़ BRI को सपोर्ट करता है, और उन्होंने एक और चीज़ ये बोली है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो गारंटीड प्रोटेक्शन टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्वेस्टर्स। अब इसके अलावा अगर आप फाइनल एक चीज़ पे बात करें कि अपने क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं या असिस्टेंस है, तो इंडिया असिस्टेंस इफ़ यू टॉक अबाउट, तो अगर आप हमारे असिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 2015 के अर्थक्वेक के बाद हमने ओवर $2 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, राइट। कैसे इन्वेस्ट किया है अभी मैंने आपको आगे बताया कि भाई हमने अरुण 3, अरुण 4, ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे डेवलप करे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब 2018 में मोदी जी नेपाल गए थे, जब 2018 में उन्होंने विजिट करी, तो वहाँ वो 100 करोड़ का एड देकर आए हैं। किसको डेवलप करने के लिए? टू डेवलप जनकपुर। सो बेसिकली जनकपुर को डेवलप करने के लिए ये 100 करोड़ का एड देकर आए हैं, राइट। सो दैट वाज इन 2018 विजिट। इसके अलावा अगर आप बात करें जनकपुर के एड के अलावा अगर आप बात करें तो जनकपुर जयनगर रेल लाइन, जनकपुर से जयनगर वाली हमको रेल लाइन भी या रेल लिंक प्रोजेक्ट भी, इस पे भी हमने ऑफिशियल इनॉग्रेशन करा। कब? 2 अप्रैल 2022। अब ऑपरेशनल ये हो चुका है, इसको अपग्रेड भी करा गया है। अगर आप जयनगर की बात करें तो जयनगर कहाँ है? ये बिहार में है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी आपने सुना ही होगा, मधुबनी पेंटिंग्स। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़
पढ़ लीजिए एक बार ही आप मधुबनी पेंटिंग्स पढ़ लीजिए, और अगर आप उन्हें गूगल भी करेंगे पेंटिंग्स को तो यू विल सी कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, बहुत प्यारी पेंटिंग्स होती हैं। तो मधुबनी पेंटिंग्स बिहार, ठीक है। तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है जयनगर वहीं पे है, राइट। इसके अलावा एक बस सर्विस भी हमने इनॉग्रेट, देयर इज़ अ बस सर्विस बिटवीन अयोध्या टू जनकपुर, बेसिकली अयोध्या से जनकपुर, राम जी से सीता जी तक, है ना। तो अयोध्या टू जनकपुर यू हैव अ बस सर्विस ऑल्सो। देर इज़ अनदर दिस थिंग ऑल्सो कि हमने 3 अग्रीमेंट्स करे हैं। अगर आप 3 अग्रीमेंट्स, और भी हमने अग्रीमेंट्स 2018 में ही करे हैं, 2018 3 अग्रीमेंट्स। वन वॉज ऑन एग्रीकल्चर, अनदर वॉज ऑन इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, एग्रीकल्चर, इनलैंड वाटरवेज, और तीसरा रेल कनेक्टिविटी। तो हमने एक रेल कनेक्टिविटी पे भी अग्रीमेंट करा, राइट। एक रेल कनेक्टिविटी पे भी हमने एक अग्रीमेंट करी। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगस्त 2022 मोदी जी गए थे लुम्बिनी। तो लुम्बिनी इज द, अगर आपको पता है तो आप मुझे ये बताएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करिए लुम्बिनी कौन सी जगह है। आई नो ऑल ऑफ यू नो कि लुम्बिनी क्या जगह है, लुम्बिनी किस लिए फेमस है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि लुम्बिनी क्या जगह है, राइट, या किस चीज़ के लिए फेमस है। लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है। जिनको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो फिर भी मुझे गेस करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, या सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लुम्बिनी गए थे मोदी जी, जहाँ पे उन्होंने एक विहारा का फाउंडेशन स्टोन रखा। तो चैत्याज और विहाराज भी, देयर आर 2 टाइप्स, है ना, एक चैत्याज होते हैं और फिर विहाराज होते हैं। तो विहाराज जो है वो रेसिडेंशियल प्लेसेस हुआ करते थे एंशिएंट मिडिवल टाइम्स में फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स, ठीक है। तो उन विहाराज में आप देखोगे कि हिंदू या जैन मंक्स, फॉर एग्जांपल जैन और बुद्धिस्ट मंक्स भी रहा करते थे। सो दे वर लाइक अ रेसिडेंशियल प्लेसेस, ठीक है। तो ये है, तो अब ये रहा अभी तक का जितना भी हमारा ट्रैजेक्टरी था, इश्यूज हमने डिस्कस करे एक्सेट्रा। अब अगर आप बात करो फ्रेश कि एक्चुअली ये लेक्चर क्यों हुआ, दिस वाज बिकॉज वहाँ के पीएम जो हैं वो प्रचंडा जी, वो आए थे 4 दिन की विजिट पे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये डिस्कस करना है कि 2023 जून 2023 में, मतलब लास्ट वीक हमने क्या क्या अग्रीमेंट्स करी। प्लीज़ टेक अ पेन एंड अ पेपर, मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि मैंने आपको सारा अभी तक जो भी था मैंने आपको सारा करवा दिया है। अभी जो है लास्ट वीक क्या हुआ है, एकदम लास्ट वीक, सो दिस इज एकदम फ्रेश करंट अफेयर्स विच इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो आप एक पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए और आप इसके नोट्स बना दीजिए, राइट। तो जून 2023 क्या क्या अग्रीमेंट्स हमने करे हैं। सबसे पहला तो हमने 10,000 हम हमारे we are going to increase the export of power from Nepal to India to 10,000 megawatts by what time, by within the next 10 years, ठीक है। दिस इज अ न्यू पावर ट्रेड अग्रीमेंट। तो बेसिकली हमने ये नया लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड अग्रीमेंट ये हमने साइन किया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट हमने एक MOU साइन किया है फॉर द जी करेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पेट्रोलियम सप्लाई पाइपलाइन। और ये कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, इफ एनीबडी हैज एन आइडिया? करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम सिलीगुड़ी टू झापा। तो मोतिहारी अमलेखगंज ऑलरेडी है, अब हम एक और
क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन बनाने वाले हैं विच इज़ सिलीगुड़ी टू झापा, और इसके कंस्ट्रक्शन पे MOU हो चुका है। नेक्स्ट, मोदी जी ने ये बोला है कि भाई इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को अब हम हिमालयन हाइट्स पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र प्लांट नेपाल में बनाएंगे, ऐसा एक MOU साइन हुआ है, राइट। तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अ फर्टिलाइजर प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक रेल कार्गो, जी करेक्ट, हम एक रेलवे कार्गो ट्रेन, रेल कार्गो ट्रेन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो भाई नेपाल कस्टम यार्ड जाना है हमें, नेपाल कस्टम यार्ड। और कहाँ से जाने वाले हैं? करेक्ट, हम जाने वाले हैं बतनाहा से, ठीक है। दिस इज बतनाहा, BATHNAHA। बतनाहा कहाँ है? ये बिहार में है, ठीक है। तो दिस वी आर डूइंग इट विथ इंडियन ग्रांट, ये हम इंडियन ग्रांट से कर रहे हैं, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि ICPs, तो जैसे मैंने आपको जब नेपालगंज लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि अब वो भी ऑपरेशनल इनॉग्रेट हो चुका है। तो इनॉग्रेशन में जो है 2 ICPs को इनॉग्रेट करा गया है, ठीक है। तो कौन से हैं ये 2 ICPs? एक है नेपालगंज, जिसकी अभी मैंने आपको बात करी, ठीक है, कि नेपालगंज, और दूसरा रूपई दीघा, सेम एक ही है वो, और ठीक है, रूपई दीघा, दीघा दीघा नहीं, दीघा, रूपई दीघा। तो रूपई दीघा इंडिया में है, नेपालगंज नेपाल में है ऑब्वियसली। तो ये 2 ICPs भी इनॉग्रेट हुए हैं। इसके अलावा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई है 2 ICPs पे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है सोनौली पे, अभी मैंने आपको, जब हम आगे इनलाइन लिख रहे थे तब मैंने आपको बताया था। और दूसरा है भैरवा। तो भैरवा नेपाल और सोनौली इंडिया, ये 2 ICPs पे भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों के अलावा देयर आर 7 मोर MOUs जो साइन हुए हैं इस मीटिंग में, ठीक है। सीधा अब इसी की बात करते हैं कि वो 7 MOUs कौन से हैं जो साइन हुए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। सबसे पहले अगर बात करें तो एक ट्रीटी ऑफ साइन, MOU ऑन अ ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, एक MOU ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट पे हुआ है। दूसरा पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस फील्ड में हम करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, नेक्स्ट, एक MOU साइन हुआ है बिटवीन सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट, हाँ जी, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये नेपाल, इनके बीच में भी MOU जो है साइन हुआ है, ठीक है। देन देयर इज अनदर MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट धोदरा और धोदरा चांदनी, नाउ दिस इज ऑल्सो चेक पोस्ट। धोदरा चांदनी चेक पोस्ट जो है बॉर्डर पे, इसको भी आपने डेवलप करना है, यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है। इसके अलावा फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस पे भी एक डेवलपमेंट MOU साइन हुआ है। उसके अलावा NHCL प्लस NPCIL, इन दोनों के बीच में भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे MOU साइन हुई है, ठीक है, ताकि क्रॉस बॉर्डर दोनों के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हमने यहाँ पे दिस इज़ व्हाट वी हैव साइंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट MOU हुआ है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन द जून 2023 का नेपाल के PM का विजिट, ठीक है। एक और जो आई वुड एंड माई लेक्चर विद दिस कि दिस वॉज ऑल इन इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, what lies ahead. If you want me to discuss that, we can discuss that like in very brief, but I would like to end this meet or the June 2023 meet by saying that मोदी जी ने एक बात रिमाइंड करवाई सबको कि 2014 में जब मैं पहली बार नेपाल गया था तो तब मैंने ये बोला था कि भाई वहाँ पे मैंने एक हिट फॉर्मूला दिया था, ठीक है। वो है HIT, मैंने हिट फॉर्मूला दिया था। हिट स्टैंड्स फॉर, so H stands for highways, I stands for highways मतलब इंटरनेट, and T stands for transways, ट्रांस बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो इन्होंने हिट फॉर्मूला दिया था। अभी इन्होंने कहा कि अभी जब मेरे साथी मिस्टर प्रचंडा जी, when he has come to India, the kind of agreements that we have made, we are all set to make the relations super hit. तो 14 में उन्होंने 2014 में 2014 में उन्होंने बोला था कि I have given this formula of hit relations between India and Nepal, and now with the agreements that we have put in place in this 2023 meet, our relations are going to be super hit, ठीक है। That's a you know that Modi ji has a very charming and effective ways of putting things out, कि मतलब लोग बस इम्प्रेस ही हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये भी हिट से जो सुपर हिट इन्होंने रिलेशनशिप को बोला है, या उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया नेपाल अपने रिलेशंस को हिमालयन हाइट्स पे ले जाएंगे। देखो ग्रेटर हाइट्स तो सब कहते हैं, हिमालयन हाइट्स इज़ अ वेरी न्यू टर्म टू बी यूज, राइट। सो दैट्स अ चार्म ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। एनीवे, तो भाई हमें क्या करना चाहिए अब अगर आप वे फॉरवर्ड की बात करें, हाँ, कि इंडिया नेपाल के लिए अब आगे क्या, तो उसमें 2-3 चीज़ें आप हमेशा मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारे जो कल्चरल, हिस्टोरिकल या पीपल टू पीपल टाइज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमको उस पर इनकैश करना चाहिए या उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। दूसरा कि स्कॉलरशिप्स आप बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंजेस बढ़ा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ या टूरिज्म फैसिलिटीज़ आप इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, सो दैट the push and pull factors when it comes to immigration of any country, तो push and pull factors work, right। तो आप ये फैसिलिटीज़ उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, आप नेपाल के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकल एंटरप्रेन्योर्स, कि भाई you see that we are giving way to the startups and we are very progressive and open to the startups in India, तो आप नेपाल के एंटरप्रेन्योर्स को भी वो स्पेस दे सकते हैं या वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपने बॉर्डर या वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ये बहुत ही छोटे डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत छोटे हैं, बहुत मिनिस्क्यूल हैं, तो सिर्फ इन डिस्प्यूट्स की वजह से अगर हमारे रिश्तों में बिल्कुल भी खटास आ जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बैक बर्नर पे ना रखकर उन पे प्रायोरिटी बेसिस पे उसका सोल्यूशन ला दें, अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ला दें, तो नथिंग लाइक इट, इंडिया नेपाल रिलेशंस वुड actually reach the Himalayan heights, which can result in a mutually beneficial future for both. This is with respect to India and Nepal relations from the top, holistically, till whatever has happened till date, right? This was India Nepal relations. If you want me to make videos on any other country's relations with India, my domain is international relations specifically, so if you want me to analyze any particular country's relations with India or any other international relations related topic or current affairs related topic, feel free to drop a comment in the comment section below and I will try my best to give you the best. DICS believes in the best quality of content. We deliver the best to you. Thank you so much. Have a good day.